Okay, let's start now with acceleration. In earlier videos, in earlier lecture, we have read about distance, displacement, speed, types of speed, velocity. Now we come to acceleration. What we mean by acceleration? Let's take an example. Suppose a body is moving with uniform speed from position A to position B, then there is no change in the speed. Average speed will remain same, or when if the motion is along a straight line, then we can say the body is moving with uniform velocity, whose magnitude remains same, constant. Okay, but practically is it possible? Practically, in most of the cases, what we'll do, we generally move from one place to another place with variable speed or variable velocity. When the velocity keeps on changing continuously, then we need a term which is called acceleration. So what is acceleration? Basically, it is defined as the rate of change of velocity with respect to time. So it is time rate of change of, it is time rate of change of velocity. Why we are talking with respect to time? We can say the rate of change of velocity with respect to time. That is defined as A is equal to, represented by small a, change in velocity upon change in time, that is delta v upon delta t. This is called acceleration. Delta v, the change in velocity, which I can say v2 minus v1, and this is t2 minus t1. If v1 is the velocity at time t1, v2 is the velocity at time t2, time changes from t1 to t2 and velocity changes from v1 to v2. So this delta v represents change in velocity and this delta t represents change in time. Delta is used for change. Small में error में भी हमने delta लिया था. Children, again I want to make this confusion clear कि यहाँ delta से delta कटता नहीं है. Delta v has its independent identity. This is change in velocity. Delta t also having its independent identity, that is change in time, and this is called acceleration. Okay, its SI unit is meter per second square, meter per second upon second meter per second square, and it is a vector quantity. It is a vector quantity. ये vector quantity है. Types, acceleration के कौन-कौन से types हैं? First is uniform acceleration. Uniform acceleration. क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? कब आएगा यूनिफॉर्म? मींस कांस्टेंट. कब होगा कांस्टेंट? जब चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम इंटरवल कैसे बने रहे? कांस्टेंट बना रहे. सो देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल चेंज इन टाइम. यानी कि 10 मिनट में जितना वेलोसिटी में चेंज आता है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में भी उतना ही चेंज आए, नेक्स्ट 10 मिनट में भी उतना ही चेंज आए, देन एक्सीलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दैट इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी in which time? Equal time interval. Equal change in velocity in equal time interval, that is called uniform acceleration, right? Second, non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration means when there is unequal change in velocity in equal interval of time, or equal change in velocity in unequal interval of time. दोनों में से एक भी अनइक्वल हो जाए, पहले 10 मिनट में जितना वेलोसिटी में चेंज आया, अगले 10 वेलोसिटी में कहीं उससे ज्यादा चेंज आए या कम आए, फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में और अलग चेंज आए, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट है नेक्स्ट 10 मिनट्स में, तो एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. तो किसी गिवन टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कैसा है? डिफरेंट है. या फॉर द सेम चेंज इन वेलोसिटी द टाइम रिमेन different, time does not remain same, it becomes different, then it will become non-uniform acceleration. And when we talk about average acceleration, it is the total acceleration divided by the total time, then it will become average acceleration. So acceleration is non-uniform, then we take average, and now we come to fourth, that is instantaneous acceleration. Let me write on that side. Instantaneous acceleration. What do you mean by instantaneous acceleration? It is the acceleration at any instant. What do you mean by at instant? That is at any time. Just like in case of instantaneous velocity.
At any instant, what is the acceleration? That is called instantaneous acceleration. And this A instantaneous acceleration is equal to limit delta t tends to 0, that is delta v upon delta t. Delta v upon delta t, change in velocity upon change in time. What is delta t? Tends to 0. Again we have defined it, we have explained it. डेल्टा टी जितना 0 के करीब होगा उतना ही दो टाइम इंटरवल के डिफरेंस को 0 अगर करते हैं, दैट इज नोन एज एन इंस्टेंट. और इसको हम क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में? dv by dt. और इसको हमने बताया था, इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. ओके, ये तो एक्सीलरेशन हो गया सर, अलग अलग पार्ट्स हो गए. एक्सीलरेशन में देखिए वेलोसिटी कैन इंक्रीज एंड द वेलोसिटी कैन डिक्रीज. सो एक्सीलरेशन इज इन रिगार्डिंग व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन. बट इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, if the velocity of the body decreases, then it will become deceleration. So next term becomes deceleration, acceleration or retardation or negative acceleration. नेगेटिव एक्सीलरेशन. अब देखिए तीन अलग अलग टर्म हमने बताई. कौन कौन सी टर्म बताई? डी एक्सीलरेशन, और क्या बताया हमने? रिटार्डेशन बताया, और क्या बताया? नेगेटिव एक्सीलरेशन. नेगेटिव एक्सीलरेशन कैसे हो गया? नेगेटिव इसलिए हो गया जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, देन v2 माइनस v1 विल बिकम नेगेटिव. इन दैट केस it is known as deceleration. So when the acceleration becomes negative, that is final velocity becomes less than the initial velocity, then it will become deceleration. जब आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते हैं, तो उसे एक्सेलरेट करना कहते हैं. And when you apply the brake, the velocity decreases or the speed decreases, then it is said to be deceleration or negative acceleration. The formula will remain same, only there is a change whether it is positive or it is negative. So this is about the acceleration. चलिए एक कॉन्सेप्ट ही हो गया. तो अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं. हमें वेलोसिटी तक हमने पूरा किया था. अब आज हमने एक्सीलरेशन भी समझ लिया है. ये वेक्टर क्वांटिटी भी हो गई, इसकी एसआई यूनिट भी हमें समझ आ गई, टाइप्स भी हमें समझ आ गए. बेसिकली हमारे सिलेबस में जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं. तो हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशंस को वो मान के चलते हैं जिसमें इसकी वैल्यू कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है. अब देखिए इसी मोशन को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका लेते हैं. ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड एंड डेफिनेशन बेस्ड. हम एक और मेथड से हम इसको डिफाइन या एक्सप्लेन करते हैं मोशन को बच्चों, और वो कहलाता है आपका मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड मोशन को हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं किस मेथड से? बाय ग्राफिकल मेथड. ग्राफ्स की हेल्प से करते हैं. ग्राफ क्या होता है? देयर इज एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. देयर आर टू पैरामीटर्स, वन पैरामीटर वेरीज विद अनदर पैरामीटर. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इज xt ग्राफ. x stands for position and t stands for time. So this is the graph between position and time, or it shows the variation of position of an object with respect to time. That is known as position time graph. Okay, इसमें हम कुछ ग्राफ्स बनाते हैं. चलिए समझते हैं कोशिश. इधर हमने x एक्सिस लिया और इधर हमने कौन सा एक्सिस लिया? y. ये ओरिजिन हो गया. इधर हमने टाइम कंसीडर किया और इधर हमने लिया पोजीशन. पोजीशन को हमने रिप्रेजेंट किया किससे? x से. देखिए हम ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं. अब आपको बताना है ये ग्राफ कैसे हो, हमें समझना है. व्हाट डज दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स? पोजीशन इज मेजर्ड ऑन टर्म्स ऑफ ऑन y एक्सिस and time is measured on x axis. In this direction time is increasing and in this direction position is changing. So देखिए क्या होगा, जब टाइम इधर से इधर चेंज हो रहा है but the position is not changing. For this time position is same, for this time position is same, for this time the position is same. It means the position of an object is not changing, and when the position of an object does not change with respect to background, then it is called body at rest. So this graph represents for all the bodies which are at rest. If you have been asked to draw the graph of this board with respect to time, its position does not change with time. ये यहीं पर फिक्स्ड है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो कौन सा ग्राफ आएगा? ये वाला ग्राफ बनेगा. अगर हम एक बुक को बने, बुक इज लाइंग ऑन ए टेबल एंड यू डोंट चेंज द पोजीशन ऑफ द बुक, व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ द बुक? दैट इज दिस विल रिप्रेजेंट द ग्राफ, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बी.
अगर हम इसी ग्राफ को इस तरीके से ले लें, सपोज दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन, टाइम एंड पोजीशन, व्हाट डज ग्राफ रिप्रेजेंट? What does this graph represent? When time increases, the position also increasing linearly, position is also changing linearly. So by changing time, the position is also changing, and because it is a straight line, the change in position is directly proportional to change in time. That's why it is called uniform speed. And if the motion is along a straight line, then we know the speed becomes equal to velocity, or it will become uniform velocity. अब हम velocity निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं. इसे देखिए कैसे करते हैं, बताइए. velocity का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? velocity का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, और डिस्टेंस क्या होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम. इसमें कहीं भी आप 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट आप ले लीजिए. यहां से मान लीजिए आपने ये वाला कंसीडर कर लिया, सपोज कोरस्पॉन्डिंग टाइम कितना है t2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग कितना है t1. यहाँ कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन x1 और ये कितनी हो गई x2. तो बताइए इस a और b पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितना पोजीशन में चेंज आया फ्रॉम x1 टू x2. तो हम क्या कह सकते हैं इसको? डेल्टा x डिवाइडेड बाय कितना चेंज आया? t2 माइनस t1. क्या कह सकते हैं? डेल्टा t कह सकते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. और अगर हम इसमें यहाँ थीटा लें और ये पॉइंट C बनाए, व्हाट अबाउट दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये डेल्टा x हुआ और ये डेल्टा t हुआ. क्या पढ़ते हैं इसको बताओ? डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t. क्या पढ़ते हैं इसको? टेन थीटा. और ये जो टेन थीटा होता है इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन. ये जो ग्राफ लाइन है, कौन से वाली ग्राफ लाइन है? ओबी जो ग्राफ लाइन है ये, इसका स्लोप कहते हैं. तो इट मीन्स और इट शोज दैट अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ्स का स्लोप निकालते हैं तो क्या मिल जाती है? वेलोसिटी मिल जाती है. सो वेलोसिटी कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ विच ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ. एंड दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड बिकॉज देयर इज ए यूनिफॉर्मिटी, मींस थीटा रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द एंटायर वैल्यू. कहीं से भी ले लीजिए थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, स्लोप कांस्टेंट रहेगा. सो ये क्या बताता है? यूनिफॉर्म स्पीड. चलिए नेक्स्ट, अगर नॉन यूनिफॉर्म ले लें, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. देखिए अगर इसी ग्राफ को मैं ऐसे बना दूं, अगर हम ऐसे बना दें ग्राफ को, इधर x लिया है और इधर क्या लिया आपने? टाइम लिया है. अब देखिए टाइम बढ़ रहा है, यहां पहले फास्ट रेट से पोजीशन चेंज हो जाएगी और फिर पोजीशन ऑलमोस्ट कैसी बन रही है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई है. सो दिस कर्व ग्राफ शोज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. कैसी स्पीड है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा. ये अगर कर्व ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म को स्पीड कर बताएगा. और अगर ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ है टाइम एक्सिस के करीब, तो क्या बताएगा? बॉडी एट रेस्ट. अच्छा, क्या इस ग्राफ को हम ऐसे भी बना सकते थे? इज इट पॉसिबल? दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल. व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? टाइम इज नॉट चेंजिंग, पोजीशन इज चेंजिंग. एक ही पॉइंट पर यहाँ है, उसी टाइम पर यहाँ है, उसी टाइम पर यहाँ है. एक टाइम पे 7 बजे हम यहाँ बैठे हैं, 7 बजे हम अपने घर पहुंच जाते हैं, 7 बजे मार्केट पहुंच जाते हैं. इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. वी कांट स्टॉप टाइम, टाइम हैज टू इंक्रीज. सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल. वी डिलीट इट. तो ये कौन सा मोशन होगा? दिस इज द एक्सटी ग्राफ or the graph between position and time, and we can calculate this thing, which thing? Velocity, by using this graph. Okay. अगर इसी ग्राफ से हम से और कोई चीज पोजीशन निकालना चाहे तो किसी भी टाइम t के कोरस्पॉन्डिंग या वैल्यू देख लेंगे, क्या निकाल सकते हैं? पोजीशन निकाल सकते हैं. डिस्टेंस निकालना चाहे किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस निकाल सकते हैं. सो दीज टू थिंग्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस ग्राफ. कम टू द सेकंड ग्राफ. सेकंड ग्राफ इज graph between velocity and time. This is VT graph. Second one is VT graph. VT means between velocity and time. A part. Again, we have this kind of graph. On this axis we have time, and on this axis we have velocity. Velocity V, and suppose O, A, B. What does this graph represent? Again, there is a straight line parallel to which axis? X axis, time axis. Time axis के parallel है. What it indicate that this line is parallel to this axis, means time is increasing but velocity is not changing, and it shows uniform velocity.
क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी ट्रेवल करती है। और अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड लेते हैं तो देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम t ले लें, ए बी, और ये पॉइंट कितना कर दें? c कर दें। अगर हम यहाँ से देखिए क्या निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल बन गया कि नहीं? और इस रेक्टेंगल में इधर क्या है? वेलोसिटी। इधर क्या है? ये टाइम है। अगर हम इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। व्हाट अबाउट डिस्टेंस? डिस्टेंस विल बिकम वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? ओ ए। टाइम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओ सी। यहां से यहां तक का टाइम है, यहां से यहां तक का वेलोसिटी है। और व्हाट अबाउट दिस ओ ए इंटू ओ सी, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो एरिया बना रेक्टेंगल, और इस एरिया को हम, रेक्टेंगल को कहते हैं एरिया ऑफ द रीजन बिलो ग्राफ लाइन। जरा समझिए, ये जो ग्राफ लाइन है जिसको हम शेडेड रीजन कह रहे हैं, इस ग्राफ लाइन से नीचे का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं, किस ग्राफ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो क्या मिल जाता है? डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाती है। तो यहां से हम डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, समझ आ गया सबको? सेकंड वन, अगर हम इसी ग्राफ को इस तरह का ले लें, सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ टी एंड दिस इज वेलोसिटी, ओ पॉइंट हो गया दिस ग्राफ। ओके, इट शोज एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। Uniform acceleration. Why uniform acceleration? Because velocity changing at uniform rate with time. जितना टाइम बढ़ता है उसी के प्रोपोर्शनल में वेलोसिटी बढ़ती है। तो एक्सीलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। और अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो देखिए हम एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे इससे। इस पॉइंट को ए कह दीजिए, इस पॉइंट को बी कह सकते हैं हम। और एक्सीलरेशन को हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओ से लेके बी तक का टाइम कितना मान लीजिए? टी मान लीजिए। टी माइनस जीरो लेंगे तो टी आ गया। और O से लेके और यहाँ इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी में कितना आ गया? मान लीजिए वेलोसिटी कितनी है? V है। तो सपोज V माइनस जीरो कितना हो गया? V हो गया। एंड व्हाट अबाउट V? चलिए V माइनस जीरो अपॉन टी माइनस जीरो भी ले सकते हैं। और अगर कहीं दो इंडिपेंडेंट बीच का पॉइंट मानते हैं, सपोज आपने मान लिया C पॉइंट और D पॉइंट, ये रेस्पेक्ट में T1 और ये रेस्पेक्ट में कितना आएगा? T2, ये आएगा V1 और ये कितना आएगा? V2। तो बताइए क्या बनेगा? डेल्टा V, और ये क्या बनेगा? डेल्टा T। तो ऐसे केस में क्या लिख सकते थे हम? डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। अगर इसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, दिस इज ऑल्सो डेल्टा V, लेकिन इसमें कौन से लेते हैं? टाइम t इक्वल टू 0 से लेते हैं। तो ये भी डेल्टा V है, ये डेल्टा T है, ये भी डेल्टा T है, और ये कितना है? डेल्टा V है। एंड व्हाट इज डेल्टा V अपॉन डेल्टा T? दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। और डेल्टा V परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, इट इज tan थीटा, एंड दिस इज स्लोप ऑफ विच लाइन? ग्राफ लाइन। तो देखिए क्या हुआ, अगर VT ग्राफ में ग्राफ लाइन का स्लोप ले लेते हैं तो इस स्लोप से क्या निकल जाता है? एक्सीलरेशन निकल जाता है। और अगर यहीं पर हम इसका क्या लेते हैं? एरिया निकाल देते हैं, तो एरिया निकालने से क्या आ जाता है? डिस्टेंस ट्रेवल आ जाता है। तो क्या इसमें डिस्टेंस ट्रेवल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल। ये ग्राफ लाइन है हमारी OE, इससे नीचे का जो रीजन है, जो ट्राइंगल बनेगा OAB, इसका अगर हम एरिया निकाल दें तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। किस वाले केस में? इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, लेट्स हैव अनदर ग्राफ। इफ वी हैव द ग्राफ इज लाइक दिस, इन दिस ग्राफ इधर हमने लिया है वेलोसिटी और इधर क्या लिया हमने? टाइम। टाइम t ले लिया है इसमें। एंड दिस ग्राफ इज लाइक दिस, दिस ग्राफ इज लाइक दिस। इज इट ए स्ट्रेट लाइन? नो। Is the velocity changing at the uniform rate? No. So that's why it is non-uniform acceleration. So if the graph is curved, then acceleration will become non-uniform acceleration. Large change in the velocity corresponding to the small change in time, or vice versa. In both the cases we can say the acceleration will become non-uniform acceleration. तो पहला ग्राफ से हमने VT ग्राफ से क्या निकाला? हमने इस डिस्टेंस निकालना सीखा। और इससे हम अगर इसका स्लोप लें, हॉरिजॉन्टल स्लोप कितना आएगा? 0 आएगा। इट मीन एक्सीलरेशन कैसा है? 0 है। और 0 एक्सीलरेशन मींस कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो VT ग्राफ से हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं, VT ग्राफ से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालने के लिए स्लोप लेना होगा, और हमें वेलोसिटी, हम जो डिस्टेंस निकालते हैं उसके लिए हमें एरिया लेना होगा। कौन सा एरिया? बिलो द ग्राफ लाइन ऑफ द रीजन, बिलो द ग्राफ लाइन ऑफ द रीजन ऑफ दिस। ओके,
ये तो एक्सीलरेशन हो गया। एक ग्राफ और भी तो आ सकता है, डी ग्राफ। अगर ग्राफ हमारा इस तरीके से आता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये वेलोसिटी है इधर भी, और यहाँ v से ग्राफ नीचे आता है। व्हाट इज इट रिप्रेजेंट? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट डिक्रीज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी विद इंक्रीज इन टाइम। और इसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और डीएक्सीलरेशन, डीएक्सीलरेशन इन विच विद इंक्रीज इन टाइम वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। और इसका भी अगर हम स्लोप ले लेंगे, क्या निकल जाएगा? एक्सीलरेशन आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो वेदर द एक्सीलरेशन और डीएक्सीलरेशन, if it is acceleration and this is uniform retardation or deceleration, both can be calculated by the same method. Method is take the slope of the graph line. In this case the velocity is increasing, but in this case the velocity is decreasing. So it shows a deceleration, it shows acceleration, can be found with the help of the slope of graph line, can be found with the help of the graph of this स्लोप ऑफ दिस ग्राफ लाइन। तो क्या क्या चीज एक बार समरी बताएं, क्या क्या निकाल सकते हैं बीटी ग्राफ से? हाउ मेनी थिंग्स? टू थिंग्स। फर्स्ट क्या निकाल सकते हैं? हम इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? जो ग्राफ लाइन है उससे नीचे के जो रीजन है उसका क्या लेंगे? एरिया लेना पड़ेगा। और अगर हम इसका स्लोप लेंगे ग्राफ लाइन का, तो स्लोप से क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वीटी ग्राफ। इट मीन्स वी हैव अनदर मेथड विच is the graphical method of the motion can be represented by the graphical method by position time graph number 1, by velocity time graph, right? So this is the graphical representation of the motion.